Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf, and we are going to start a new topic, that is physiology of special senses. And I'm going to start initially the first topic. We are going to talk about the physiology of vision. Special senses, general senses, you must have seen or discussed in when, if you have studied the physiology of nervous system, sensory system, the pain receptor, then the pressure receptor, then the Pacinian corpuscle, and many types of receptor, baroreceptor, etc. We are going to talk about special senses, which include the vision and olfaction and smell and this hearing. These four senses we are going to discuss in this section of physiology. Physiology of vision we are going to talk about before that. Vision is the special sense, but all that discussion before, one thing, as my routine, that is one ayah from Holy Quran I would like to quote. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa may fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. सूरह आल इमरान की आयत है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप नबी फरमा दीजिए कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं, अगर अल्लाह से आप मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, फिर मेरी इत्तबा करो। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब क्या है कि अल्लाह के भेजे हुए नबी की सारी बातें मान के जिंदगी गुजारनी है। युहब्बुकुमुल्लाहु, अगर ये काम करोगे तो फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं ये एक, और अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे ये तो सबसे बड़ी बात, कायनात की सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये हो सकती है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मुझसे मोहब्बत करे। तो अल्लाह कह रहा है कि रसूल की इत्तबा में फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा है हुजूर को कि आप कह दीजिए कि मेरी पैरवी करो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तो बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। तो ये तरीका है अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा एक ही कि रसूल की पैरवी। हुजूर से मोहब्बत का तकादा भी यही है। अल्लाह की मोहब्बत या रसूल की मोहब्बत का मतलब भी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। तो अल्लाह पाक हमें इस बात की समझ दे कि नबी की इत्तबा करनी है। So we are going to talk about the physiology of vision. Vision, this special sense is concerned with the light. Light energy is absorbed by the photoreceptor, then they are excited, and then the vision is possible, the person can see. So basic principles of this light, what we call it physical principles of optics, lights and reflection of light, what is how images is formed, that is light sources, millions of light sources are there, and they are focused differently on retina, and our brain perceives that image. So the light has to be focused. किसी इमेज को देखने के लिए all the light rays coming from a single point of source of light, they must be brought back to again single focus. उनको दोनों को सबको इकट्ठा करने, जैसे फोकस आगे हम डिस्कस करेंगे। So we have to know about the some basic principles of light reflection or refraction. Especially refraction of light, we should know. That is how the lens of the eyes or lens of the camera, they are capable of focusing the light. Image is formed by by focusing the light. Light को focus करेंगे, image बनेगा। एक पॉइंट को फोकस करेंगे, एक पॉइंट का इमेज बनेगा। मिलियंस ऑफ पॉइंट को फोकस करेंगे, मिलियंस ऑफ पॉइंट, उसी तरह का मोजाइक ऑफ दोज फोकाई विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज, and the retina or brain will perceive it. So basic principles of the physical principles of this optics we must know to understand the physiology of eye. उसको समझने के लिए इसलिए ये lenses को discuss करना जरूरी होता है, so that we can understand. One property of light, what we term as refraction, not reflection.
रिफ्लेक्शन तो एक जगह लाइट पड़ के जो इट रिटर्न्स बैक, दैट इज रिफ्लेक्शन. बट रिफ्रैक्शन, व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर मे बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट. अदरवाइज तो लाइट रेज स्ट्रेट जाती हैं, बट व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर उन दोनों में फर्क है, वो फर्क हम आगे बात करते हैं किस चीज का फर्क हो, देयर मे बी सम चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ट्रांसपेरेंट तो मस्त है, ट्रांसपेरेंट वो चीज है जिसमें से लाइट गुजर सकती है, ओपेक वो चीज है जिसमें से लाइट ना गुजरे. तो लाइट के गुजरने की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब भी हम मीडियम की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं लिखा हुआ. So change in the direction of the light when it enters from one medium to another medium. This is known as refraction. Refractive index एक और टर्म हमें समझ आनी चाहिए. Refractive index RI जिसको बोलते हैं. RI क्या होता है? It is the ratio between the velocity of light in air to the velocity of light in another medium. Air में जितनी velocity of light है उसको आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम से डिवाइड करेंगे, तो दैट विल गिव अस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. That will be the 300,000 kilometer per second. That is the velocity of light in air or space. 300,000 kilometers per second is the velocity of light in air, divided by 300,000 divided by 300,000 divide करें 1. तो refractive index of air हम बोल रहे हैं, space is 1. So velocity of light in air is 300,000 kilometer per second. So the velocity of light in a particular medium, एक ग्लास हमने रखा है, उसमें वो thick है, ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट सपोज करते हैं दैट इज 200,000 किलोमीटर पर सेकंड. तो 300,000 divided by 200,000, so that will be refractive RI of that glass. उस ग्लास का RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.5. दैट इज 3 divided by 2. 300,000 divided by 200,000, that is 1.5. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.5 होगा. किसी में और वेलोसिटी कम हो जाए उसका और ज्यादा हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अगर इसकी 100,000 हो जाए किलोमीटर पर सेकंड, तो 300 divided by 200 will be 3. तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स will be 3. ये हम क्यों कर रहे हैं? लाइट पासेस थ्रू, एयर से आ रही है, इट इज एंटरिंग इनटू द कॉर्निया, देयर विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा. इट इज एंटरिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इनटू द एक्वस ह्यूमर, वो भी एक सरफेस है, वो भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, देयर विल बी सम रिफ्रैक्शन, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. एंड देन इट एंटर्स इनटू द लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, आपने स्ट्रक्चर ऑफ द आई पढ़ा होगा, उस लेंस का भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और पोस्टीरियर विट्रस का भी, विट्रस में से भी गुजरेगी लाइट, उसका भी. सो देयर आर डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया in before it is focused on the retina. ये सारे मिलकर लेंस सिस्टम ऑफ द आई बना रहे हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डिफरेंट मीडिया वी आर गोइंग टू सी. इसका क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी बात हम करेंगे. This refraction change in the direction of the light depends upon the refractive index as well. Difference between the refractive indexes of the two media. दो मीडिया का जो आपस में मिले हुए हैं उन पे कितनी चेंज डायरेक्शन होगी, ये डिफरेंस पर डिपेंड करता है. सो वी मस्ट नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट मीडिया. आई के जो रिफ्रैक्टिव मीडिया मैंने गिना है ना, एयर है, कॉर्निया है, एक्वस ह्यूमर है, लेंस है, विट्रस ह्यूमर है. फिर ये चारों जगहों पे रिफ्रैक्शन होगी. रिफ्रैक्शन एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया. रिफ्रैक्शन होती क्यों है? डायरेक्शन ऑफ द लाइट चेंज क्यों होती है? एक बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल लाइट में आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ओनली इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द टू मीडिया. दोनों मीडिया जैसे एक से दूसरे में लाइट जा रही है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्क होगा
तब चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट आएगी। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक हो, देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस इफ देयर इज डिफरेंस, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी, चेंज इन डायरेक्शन होगी। सो व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरी बात, द इंटरफेस इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट अगर यूं है एट राइट एंगल टू दी, ये एयर है, ये ग्लास है, अगर लाइट इज पासिंग थ्रू द एयर, लाइट इज पासिंग एंड इट इज स्ट्राइकिंग एट राइट एंगल, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, ओनली वेलोसिटी विल बी रिड्यूस इन दिस ग्लास। इस हाथ को ग्लास का समझ ले, ग्लास में अगर राइट एंगल पे लाइट रेज पड़ रही है इसके, देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन, ओनली चेंज इन द वेलोसिटी विल टेक प्लेस। देयर शुड बी सम एंगल, ये इसका जो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट की सूरत में यूं लाइट जाती है, डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज एट राइट एंगल टू द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट पूरे का पूरा अगर एक बैक वक्त जा रहा है, इसको वेव फ्रंट कह ले, बैक तक ग्लास में जा रहा है, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। सो द इंटरफेस, इंटरफेस को कहते हैं जहां एक मीडियम दूसरे मीडियम से गुजर रहा है। लाइट पानी से लाइट आ रही है, पानी में गुजर रही है, पानी की सरफेस और एयर की सरफेस जहां मिल रहे हैं, दैट इज इंटरफेस। एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास और एयर जहां मिल रहे हैं, दैट इज इंटरफेस। एयर से कॉर्निया में जा रही है, दैट इज द फर्स्ट इंटरफेस। कॉर्निया के पोस्टीरियर साइड से एक्वस ह्यूमर जा रहे हैं, दैट इज सेकंड इंटरफेस। सो दैट इंटरफेस इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, ओनली देन रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन, कितनी चेंज इन द डायरेक्शन होगी, दैट इज it is directly proportional to the magnitude of directly proportional to the difference between the two refractive indices। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जिसमें रिफ्लेक्शन हो रही है, उनमें जितना ज्यादा फर्क होगा उतनी ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी। और दूसरा इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ एंगुलेशन। ये एंगुलेशन अगर ऐसे है तो ये सीधा गुजरेगा, अगर ये ऐसे है तो लोअर पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट एंटर्स इनटू द ग्लास एंड अपर पार्ट इज स्टिल ट्रेवलिंग इन एयर, तो ये तेज जाएगा, ये स्लो जाएगा, तो इट विल चेंज, direction of the wave front will change, so direction of the light will also change। So the degree of angulation, इतना angulated है, इतना angulated है, कितना globular है, लेंस कितना ज्यादा कर्व्ड है, degree of curvature उसको आप लेंस की फॉर्म में बोलें, degree of curvature, degree of angulation at the interface। So the degree of angulation at the interface, इन दो चीजों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्शन कितनी ज्यादा होगी। ना आप ये देख लें, आपकी गाइटन पढ़ने वाले जो हैं पाकिस्तान में, तो हम गाइटन ही पढ़ते हैं, ज़्यादा एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को, गाइटन एंड हॉल जो बुक है उसको पढ़ा फॉलो करते हैं, तो उसी में से ये डायग्राम उठाई हुई है। ज़्यादातर डायग्राम मैंने गाइटन से उठाई हुई हैं, कुछ मैंने इंटरनेट से गूगल से कुछ उठा के समझाने के लिए मैंने कोशिश की है। ज़्यादातर डायग्राम मेरी गाइटन एंड हॉल से उठाई हुई है। सो दिस इज लाइट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये खुला है, लाइट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। ये वेव फ्रंट्स हैं, डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज एट राइट एंगल टू द वेव फ्रंट। ये प्रिंसिपल है फिजिक्स का। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, आप इमेजिन नहीं कर लें, वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, एंड डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द वेव फ्रंट। और नाउ दिस इज एंटरिंग इनटू अ ग्लास, ये ग्लास में दाखिल हुई है, जो मैंने हाथ सीधा रखा था, वेव फ्रंट, होल ऑफ द वेव फ्रंट इज एंटरिंग इनटू द ग्लास। एट द सेम टाइम देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट, अपर पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट, लोअर पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट पूरे का पूरा दाखिल हो गया। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट, एंड देंस देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द वेव फ्रंट। सिर्फ हुआ क्या है, वेलोसिटी हैज रिड्यूस, यहां पे तेज ट्रेवल कर रही थी, ग्लास में दाखिल, ओनली वेलोसिटी हैज रिड्यूस, देयर इज नो रिफ्लेक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन नहीं हुई। चेंज इन डायरेक्शन क्यों नहीं हुई? देयर इज डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, देयर इज डिफरेंस ऑफ द मीडिया तो फर्क है, लेकिन दूसरी डिमांड जो इसकी है रिफ्रैक्शन के लिए, एंगुलेशन नहीं है एट द इंटरफेस।
इंटरफेस पे एंगुलेशन होगी तो वेलोसिटी इज रिड्यूस, देयर इज नो रिफ्लेक्शन। अब अगली डायग्राम देख लें। इस डायग्राम में वही वेव फ्रंट जा रहे हैं, लाइट जा रही है, और अब इंटरफेस इज एट एन एंगल। मैंने हाथ को इंक्लाइन करके दिखा दिया था यही चीज। नाउ अब क्या हुआ है, लोअर पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट इज जस्ट नियर दिस। थोड़ी सी देर के बाद इट हैज एंटर इनटू द ग्लास, ये ग्लास में दाखिल हो गया, एंड द पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट व्हिच हैज एंटर इनटू द ग्लास इज at slower speed, and the part of the wave front which is still in air that is traveling at a faster speed, वो फास्टर स्पीड पे है। तो रिजल्ट इज कि लोअर पार्ट इज रिटार्डेड, आपने एक साइड के व्हील को ब्रेक लगा दिया, दूसरी साइड का व्हील जो रहा है तो दिस विल turn, so this wave front will turn in this direction, so the wave front की direction change हो गया, तो direction of the light is at always at right angle to the wave front, so this is refraction, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो एंगुलेशन पैदा हुई है इस वेव और इस वेव के दरमियान में एट दिस इंटरफेस, दैट इज रिफ्रैक्शन। ये इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। इसी बेस पर हमारे लेंसेज बनते हैं। तो लाइट रेज एंटरिंग अ ग्लास सरफेस परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज, ए ऊपर वाला जो है देयर इज सरफेस ओनली रिडक्शन इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड दी, लेकिन उसमें कोई, लेकिन दूसरे में देयर इज द एंगुलेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज चेंजिंग, रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब इस पे कन्वेक्स लेंसेज को अप्लाई करें, इसी प्रिंसिपल को। अ लेंस, ये मेरे हाथ को लेंस तस्वर कर लें, दिस इज इसको कन्वेक्स लेंस तस्वर कर लें। इसको मैं ये कर्वेचर इधर नहीं बना, इधर बना समझाने के लिए। दिस इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस। सेंटर में जो लाइट स्ट्राइक कर रही होगी, देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन, देयर इज नो एंगुलेशन इन द एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ एनी स्फीयर। किसी भी बाल के सेंटर में कोई देयर इज नो एंगुलेशन, लेकिन उसके वेव फ्रंट जो जरा सा ऊपर है जरा सा नीचे है, देयर इज एंगुलेशन। सो द लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज strike the center of the lens are perpendicular to the interface। जो सेंटर में लाइट कन्वेक्स लेंस की टकरा रही हैं, they are perpendicular to the interface, वो इंटरफेस perpendicular, no reflection in the center, सेंटर वाली लाइट सीधी गुजर जाएगी because there is no angulation, एंगुलेशन नहीं है। उसी लाइट की दूसरी जो लाइट रेज गुजर रही है, दूसरा वेव फ्रंट, वो वेव फ्रंट वाला वो जो दाखिल कर रहे हैं वो एंगुलेटेड सरफेस पे है, दैट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। सो द लाइट रेज पास स्ट्रेट, सेंटर में तो स्ट्रेट पास कर जाएगी, टुवर्ड द पेरिफेरी, सेंटर से पेरिफेरी पे जाएंगे, चारों तरफ। सेंटर है स्फीयर, एक बाल स्फीयर है, स्फेरिकल लेंस है, इधर जाएं राइट एंगल पे जाएं, सो देयर विल बी टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ the angulation of the interface increases। You can imagine, सेंटर में नहीं है, जो पेरिफेरी की तरफ जाते जाएंगे मोर एंड मोर एंगुलेशन हमें मिलती जाएगी, so मोर एंड मोर रिफ्रैक्शन अकर टुवर्ड दी सेंटर। रिफ्रैक्शन किस साइड पे होती है, जिस सेंट्रल बीम ऑफ लाइट की तरफ होती है। आपने पढ़ा हुआ है, इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जस्ट आप सिर्फ दोहरा लें फिजिकल प्रिंसिपल को कि कन्वेक्स लेंसेज में जो सेंट्रल बीम ऑफ लाइट है उसकी तरफ लाइट रेज बेंड होती है। ये सेंटर में इधर जा रही है तो ऊपर वाली लाइट इसकी तरफ मुड़ेगी, नीचे वाली लाइट भी इसकी तरफ मुड़ेगी। So more and more refraction will occur towards the central beam of light and convergence of the light। इसका क्या मतलब है, light is being converged on the central beam of light, convergence of the light, इसलिए convex lenses को हम converging lens कहते हैं। properly formed अगर हम lenses बनाएं properly, it can bring all the light rays from a single point source of light, एक सिंगल पॉइंट से उन सबको जमा कर सकता है, इट विल फोकस बना सकता है, लाइट रेज टू अ कॉमन फोकल पॉइंट तक फोकस कर सकते हैं आप। एंड दिस convex lenses are known as converging lenses, they converge the light rays। और convex lenses ये है, सेंट्रल बीम ऑफ लाइट जो गुजर रही है वो सीधी गुजर रही है, बिकॉज देयर इज नो एंगुलेशन। या जरा सा पेरिफेरी पे जाएंगे देयर इज एंगुलेशन, और पेरिफेरी पे जाएंगे मोर एंगुलेशन, और एंगुलेशन। सो बेंडिंग इंक्रीजेस एज वी आर मूविंग फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी। और नीचे की तरफ बेंडिंग दूसरी तरफ है, कर्वेचर दूसरी तरफ है, बेंडिंग भी दूसरी तरफ होगी। बेंडिंग इज टुवर्ड द सेंट्रल बीम ऑफ लाइट इन दीज कन्वेक्स लेंसेज।
So these are the convex lenses are the converging lenses, और इसको focal length बोलते हैं from the center of the lens to इसको हम आगे भी बात करेंगे. Focal length from the center of the lens to the this focal point, इसको parallel light rays अगर focus जहाँ पे हो रही हैं उसको हम कहते हैं focal length. So this is convex lens. Bending of the light rays at each surface of the convex spherical lens, showing that the parallel light rays are focused to a focal point. All the parallel light rays, all these light rays are coming from a single point source of light. ये सारे दूर से आ रहे हैं. A single point source of light की सारी light rays जो parallel हो जाती हैं दूर से आने वाली, they are being converted to again a single focus. Single point source of light, single focus दोबारा बन गया. Now the concave lens is opposite होगा. The center of the lens पे जो light जाएगी वो भी straight जाएगी, और perpendicular and no refraction and the light rays will pass straight. ये तो बात सीधी होगी. लेकिन periphery में angulation is in the opposite direction. So light will be reflected in the opposite direction. What is meant by convex lens? Light is reflected towards the central beam of light. Concave lens में it will be reflected away from the beam of the light. So the peripheral light rays are refracted away from the central beam of light. Center से दूर जाएंगी, and the more and more angulation towards the center and more reflection away from the central beam of the light. So more and more angulation towards the periphery causes more and more refraction, and light rays are diverged. Single point source से आ रही थी parallel light rays, parallel हो गई थी, लेकिन इस लेंस से गुजर कर they are diverging. वो और दूर चली गई एक दूसरे से. So हुआ क्या concave lens में? This is concave lens. Central light is passing straight. This light is bending, क्योंकि आप curvature उल्टी साइड पे, उधर नहीं है. उधर होता तो नीचे बेंड करती है, और उधर है तो इट इज बेंडिंग ऑन द अवे फ्रॉम द सेंट्रल बीम ऑफ लाइट. और पेरिफेरी पे ज्यादा डाइवर्ज, और पेरिफेरी पे और ज्यादा डाइवर्ज, और सेंटर पेरिफेरी पे ज्यादा डाइवर्ज, और अपोजिट साइड पे डाइवर्ज. सेंट्रल बीम ऑफ लाइट से अवे going light rays, and these are the diverging lens. Bending of the light at each surface of the concave spherical lens, showing that the parallel light rays are diverged. So these are the diverging light rays. यहां पे एक लफ्ज आया spherical lens. Spherical lens का क्या मतलब है? As if it is a part of a sphere. आप मैं जरा पिछले लेंस को मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा समझ आएगा. इस लेंस को, इसको बाई कन्वेक्स न समझे, एक सिंगल कन्वेक्स लेंस ले लेना. तो दिस इज, इसको हम पूरा गोला बना सकते हैं. इस दायरे को एक्सटेंड करें तो एक बड़ा सा दायरा बनेगा ना, एक स्फीयर बनेगा ना. तो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर. आप शीशे का एक ग्लास ले लें, शीशे का नहीं, ग्लास नहीं, अब बाल ले लें, शीशे का एक बड़ा सा बाल ले लें, उसका एक पीस काट लें, दैट विल बी अ स्फेरिकल लेंस. इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर. इट इज इवनली कर्व्ड ऑन ऑल डायरेक्शंस. स्फेरिकल का क्या मतलब है? बाल इज कर्व्ड इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन भी एंगुलेशन उतनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एंगुलेशन होती है. किसी भी एंगल पे लेने उतना ज्यादा एंगुलेशन उतनी है. स्फीयर है, वो इवनली कर्व्ड है ऑल डायरेक्शन में, ऑल प्लेन्स ऑफ लाइट. लाइट जो ट्रेवल कर रही है किसी एक पॉइंट सोर्स से, कुछ वेव फ्रंट यूं आ रहे होंगे, को वेव फ्रंट वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहे होंगे, कुछ किसी और एंगल पे आ रहे होंगे, कुछ किसी और एंगल पे आ रहे होंगे. ऑल द वेव फ्रंट्स वो डिफरेंट डायरेक्शन. तो वो सारे जब इस स्फेरिकल लेंस में खुलेंगे सारे इक्वली बेंड होंगे, and that's why they are brought to a common focal point. So that's why spherical lens सारी light rays को focus point पर ले आता है. It is a part of a sphere. As if it is a part of a sphere, इसको spherical, इस दायरे को भी extend करें ना, concave lens को एक अंदरूनी साइड सरफेस जो होगी, that will be concave lens. बैरूनी सरफेस is a convex lens. ये भी sphere बना सकते हैं, concave sphere. अंदरूनी सरफेस लेंगे, concave sphere बन जाएगा. So spherical lens. अब आ जाएंगे सिलेंड्रिकल लेंस. ये भी एक खास सिलेंडर. आप देखें, अभी हमने स्फेरिकल लेंस किसको बोला? इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर.
पार्ट ऑफ अ सफियर का क्या मतलब है? ये हमने उसको काट के एक पीस देख लिए, मेरा हाथ इज अ पार्ट ऑफ अ सफियर, ये कर्वेचर उसका इधर भी ऐसे है, इधर भी ऐसे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, किसी भी एंगल पे इसकी एंगुलेशन वैसी है। लेकिन आप एक टेस्ट ट्यूब ले लें, एक सिलेंडर ले लें, अब उस सिलेंडर को देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो एंगुलेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज कर्वेचर, horizontal direction में there is curvature and vertical direction में there is no curvature। ये भी एक लेंस होगा। टेस्ट ट्यूब इज अ लेंस, एक ग्लास रॉड इज अ लेंस, लेकिन वो सिलेंडर है। वो क्या करता है कि लाइट रे जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएंगी उनको तो एंगुलेशन नहीं मिलेगी, वो सीधी गुजर जाएंगी। जो इस एंगल में आएंगी, एट राइट एंगल आएंगी, दे विल बी रिफ्लेक्टेड, उनको एंगुलेशन मिलेगी। ये टेस्ट ट्यूब है, अगर वेव फ्रंट ऐसे टकराता है तो वो तो सीधा टकरा रहा है, वो सीधा गुजर जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में अगर टकराने वाला है उसको कर्वेचर मिलेगा, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। सो सिलेंड्रिकल लेंसेज ऐसे बनते हैं। Now the cylindrical lens bends two sides of the light rays, एक differently, वर्टिकल को वो नहीं बेंड कर रहा, हॉरिजॉन्टल को बेंड कर रहा है, फर्क नहीं। या उल्टा रख लें तो जो हॉरिजॉन्टल को ये बेंड करेगा, वर्टिकल को बेंड नहीं करेगा। अ सिलिंड्रिकल लेंस बेंड्स टू साइड्स ऑफ द लाइट रेज डिफरेंटली, नो बेंडिंग ऑन द टॉप और बॉटम, टॉप से बॉटम सीधी लाइन है, नो बेंडिंग, लेकिन उसके अ फोकल लाइन इज फॉर्म, टॉप टू बॉटम जो लाइन गुजरेगी उसकी फोकल लाइन बनेगी, वो इधर गुजर के वो अगर ये वाली फोकस हो जाएंगी उस लाइन पर फोकस हो जाएंगी, और वो जो वर्टिकल गुजरने वाली लाइट सीधी गुजर जाएंगी, हॉरिजॉन्टल वाली बेंड करके इस लाइन पर ले आएंगे, तो अ फोकल लाइन इज फॉर्म्ड, नॉट अ फोकल पॉइंट। इसमें सिलेंडर में उसकी वजह क्या है कि वर्टिकल लाइन लाइट रेज आर नॉट बेंड और हॉरिजॉन्टल लाइट रेज आर बेंड ऑन दिस लाइन, और ये फोकल लाइन बन जाएगी। सो अ फोकल लाइन इज फॉर्म्ड, नॉट अ फोकल पॉइंट। कन्वेक्स सिलिंड्रिकल लेंसेज, ये भी कन्वेक्स है, और टेस्ट ट्यूब का अंदरूनी पार्ट दैट विल बी कन्वेव सिलिंड्रिकल, टेस्ट ट्यूब को वर्टिकली काट देना, उसका बाहर वाली सरफेस कन्वेक्स सिलिंड्रिकल लेंस होगा, अंदरूनी वाला कन्वेक्स concave cylindrical lens होगा। convex cylindrical lenses converge the light rays on one plane only and not the light rays at right angle, ये मैंने explain कर दिया। and the concave cylindrical lenses will divert the light rays in horizontal plane and not on the vertical plane, or vice versa, उसको vice versa भी कह ले। so अब एक important बात, सबसे important बात cylindrical lenses की अब आई है, इसको मैं वापस करता हूं। यहां तक तो समझ आ गया, ये एक सिलिंड्रिकल लेंस है, वर्टिकल लाइट रेज नहीं बेंड हो रही हैं, वो सीधी गुजर रही हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली लाइट रेज गुजर रही हैं, वो बेंड होके इसी लाइन पे फोकस हो रही हैं। अब इस लेंस को मैं यूं कर देता हूं, तो अब क्या होगा, अब लाइन यूं बनेगी, अब ये लाइन यूं बनेगी, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल लाइट रेज विल नॉट बी बेंड एंड ओनली वर्टिकल लाइट रेज विल बी बेंड ऑन दिस लाइन। तो उसकी लाइन, इसको यूं करने से लाइन यूं बनेगी, इसको यूं करने से लाइन भी वर्टिकल बनेगी। अगर ये सिलेंडर और एक और सिलेंडर मैं इसके सामने रख दूं, एक इस तरह का और एक वर्टिकल का, जो लाइट रेज ये बेंड कर रहा है दूसरा उसको बेंड नहीं करेगा, जो ये बेंड नहीं करेगा दूसरा इसको बेंड करेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइट रेज विल बी बेंड बाय दिस एंड वर्टिकल लाइट रेज विल बी बेंड बाय द अदर वन। रिजल्ट क्या होगा, ऑल द लाइट रेज विल बी फॉर्मिंग अ फोकल पॉइंट। ये अगली पॉइंट, इंपॉर्टेंट बात ये आगे, जैसे मैंने कहा, टू सिलिंड्रिकल लेंसेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, दो टेस्ट ट्यूब ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, एक कर्वेचर उनका एक जैसा हो, तो एक टेस्ट ट्यूब प्लेन लाइट बना रही है, अब दूसरी टेस्ट ट्यूब दो, इसको ये बाकी लाइट रे जो ये वाली फोकस नहीं कर रही, ये फोकस कर देगी, तो दोनों मिलकर इफेक्ट उसका क्या होगा, ऑल द लाइट रेज विल बी ब्रॉट टू अ फोकल पॉइंट, तो फोकस बन जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, two cylindrical lenses of equal strength, if they are crossed at right angle, they become a spherical lens, वो स्फेरिकल लेंस की तरह हो जाता है, उनका फोकल पॉइंट बन जाता है, सारी लाइट रेज फोकस करने लग जाता है। जो ये फोकस करता है नहीं कर सकता, ये वाला फोकस कर लेता है, जो ये वाला फोकस नहीं कर सकता, ये वाला फोकस कर, रिजल्ट क्या है, ऑल द लाइट रेज आर ब्रॉट टू अ कॉमन फोकल पॉइंट। तो इसलिए हम कहते हैं टू सिलिंड्रिकल लेंसेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ इफ दे आर क्रॉस्ड एट राइट एंगल, राइट एंगल पे क्रॉस करें तो ये स्फेरिकल लेंस बन जाता है।
they become spherical. So one lens reflects the light rays which the other lens does not reflect. एक्सप्लेन कर दिया मैंने. तो दिस विल रिजल्ट इनटू दिस सिलेंड्रिकल लेंस है. अगर सिर्फ सिलेंड्रिकल लेंस है, ये स्फेरिकल लेंस है. All the light rays are being brought to us. All the planes of the light, वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, वो फोकल पॉइंट पे होंगे. सिलेंड्रिकल लेंस में अगर सिलेंडर है तो ये लाइट बनी है. लेकिन अगर इसको, ये सिलेंड्रिकल लेंस को एक और लेंस से क्रॉस करें जो फोकस नहीं हो रही, वो उसको क्रॉस करेगा एंड द रिजल्ट विल बी लाइक दिस. ये सिलेंड्रिकल लेंस है. सिलेंड्रिकल लेंस में एक फोकल पॉइंट से लाइट रेज आ रही हैं जो इधर से टकरा रही हैं, वो यहाँ फोकस हो रही हैं, ये यहाँ फोकस हो रही हैं. वर्टिकल फोकस नहीं हो रही, वर्टिकल लाइन सीधी बन रही है. लेकिन इसको दूसरे लेंस से क्रॉस कर दिया है, जो वर्टिकल लाइट रेज वाली थी वो दूसरा लेंस उसको क्रॉस करके, सो अ फोकल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विल फॉर्म अ फोकल पॉइंट. Two cylindrical lenses crossed of equal strength, crossed at right angle to each other, they become a spherical lens. They focus all the light rays. वर्टिकल को भी फोकस कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल को भी, या किसी और डायरेक्शन में भी हो तो उसको फोकस कर लेंगे. तो ये सिलेंड्रिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज वर्सेस दिस, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया. अब जरा सा इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं. फोकल लेंथ क्या होती है ये तो हम आपको पता है, अभी हमने डिफाइन कर लिया है. डिस्टेंस ऑफ द फोकल पॉइंट फॉर पैरेलल लाइट रेज, ये जरूर याद रखें. फोकल लेंथ हम पैरेलल लाइट रेज के लिए देखते हैं. करीब वाली लाइट रेज डाइवर्जिंग होती हैं, दूर वाली लाइट रेज पैरेलल, दूर की लाइट रेज पैरेलल जो होती हैं उनको जहां पे फोकस किया जाता है. डिस्टेंस बिटवीन दी, ये पैरेलल लाइट रेज हैं, वो लेंस पे टकराई हैं, तो जिस पर फोकस ये सेंटर ऑफ द लेंस से लेकर इस जगह तक, दिस इज द फोकल लेंथ. फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ. लाइट रेज फ्रॉम फार पॉइंट सोर्सेज ऑफ द लाइट आर पैरेलल. फार पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो तो उसकी लाइट रेज दूर से आ रही है, बियॉन्ड 200 मीटर्स उससे आ रही है, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल. एंड द लाइट रेज फ्रॉम द नियर पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अगर करीब है इधर, इससे दो लाइट, जो लाइट है वो डाइवर्जिंग होंगी. एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो ये मेरे दो उंगलियों की तरह लाइट रेज गुजर रही है, पॉइंट सोर्स है, ये डाइवर्जिंग है. यही अगर वो दूर लेंथ पड़ा हो तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी. लेकिन करीब वाले लेंथ के लिए तो दे आर डाइवर्जिंग लाइट रेज. सो लाइट रेज फ्रॉम द नियर पॉइंट सोर्सेज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट आर डाइवर्जिंग, and diverging light rays will be focused far behind the focal length. पैरेलल लाइट रेज फोकल लेंथ पे फोकस होंगी. अगर करीब वाली लाइट रेज है तो वो फोकल लेंथ पे फोकस नहीं होंगी, वो दूर कहीं फोकस होंगी. आगे डायग्राम में हम देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बाहर जा रही हैं, उनको तो बेंड करना, दूर जाके बेंड होंगी उस फोकल पॉइंट पे. सो लाइट रेज आर ऑलरेडी मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर एज दे एंटर द लेंस. करीब वाली पैरेलल हो तो वो सीधी आ रही हैं तो उनको बेंड किया, वो फोकल लेंथ पे बेंड होगी. लेकिन अगर वो ऑलरेडी डाइवर्जिंग है तो उनको जब बेंड करने के लिए दूर जाके फोकस होंगी. So light rays are already moving away from the central beam of light, so these light will not be focused on the focal length. वो फोकल लेंथ से दूर कहीं फोकस होंगी. उस लेंस का फोकल लेंथ जितना भी है उससे कहीं दूर जाके फोकस होंगी. इसको हमने अप्लाई करना है आंख में, हम दूर भी देखते हैं, नजदीक भी देखते हैं. सो फोकल पॉइंट विल बी अवे फ्रॉम द फोकल लेंथ. सो मोर पावरफुल लेंस विल बी रिक्वायर्ड टू फोकस दीज लाइट रेज ऑन द सेम डिस्टेंस. एक लेंस ने जहां पे फोकस किया है, अगर करीब वाली लाइट रेज है तो वहां फोकस नहीं होंगी, दूर होंगी. उनको करीब फोकस करने के लिए मोर पावरफुल लेंस विल बी रिक्वायर्ड. उसको हम देखते हैं. ये देखें, दिस इज लाइट फ्रॉम द फार सोर्स ऑफ पॉइंट. ये एक पॉइंट सोर्स से आ रही है लाइट रेज, वो फोकल पॉइंट है, ये इसका फोकल पॉइंट है. अब लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द नियर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. ये अगर बियॉन्ड 2 मीटर्स होता तो लाइट रेज ऐसे हो चुकी होती, ऑलमोस्ट पैरेलल होती. लेकिन ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट करीब है तो ये जब लाइट, दे आर ऑलरेडी डाइवर्जिंग, तो इनको जब फोकस बेंड करेगा ये लेंथ, तो इसकी रिफ्रैक्टिव पावर तो उतनी होगी ना, वो बेंड करेगा, उतना ही बेंड करेगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, दे विल बी फोकस देयर. अब इसका फोकल पॉइंट उतना है. फोकल लेंथ इसकी यहां पे है, ये फोकल लेंथ है. पैरेलल लाइट रेज के लिए फोकल लेंथ होती है, डाइवर्जिंग लाइट रेज पर हम फोकल लेंथ नहीं मेजर करते. पैरेलल लाइट रेज फोकल लेंथ इसकी इतनी है, यहां से लेकर यहां तक. तो यहां पे फोकल लेंथ पर फोकस नहीं हुआ, बियॉन्ड द फोकल लेंथ फोकस हुआ है. और ये लेंथ विच इज मोर कर्व्ड,
कर्वेचर हमने ज्यादा कर दिया है, कर्वेचर ज्यादा होने से रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, सो दे आर फोकस, बेंडिंग ज्यादा हो गया, दे आर बेंड हेयर, फोकल लेंथ से भी इधर कहीं फोकस होगी। तो मोर पावरफुल लेंस विल बेंड दीज लाइट रेज को, मैं भी उसी जगह फिर फोकस कर दिया हमने पावर। हाँ, ये डायग्राम दूसरा इसलिए लगाया हुआ है, उसी जगह पे फोकस करने के लिए या तो इस लेंस को हम पीछे हटाएं, कैमरे में यही करते हैं। कैमरे में पुराने कैमरे जो होते थे, अगर आपको शौक है कैमरे का, तो उसमें नजदीक की चीज को फोकस करने के लिए इस फोटोग्राफिक फिल्म तो यहाँ कहीं पड़ी होगी, फोटोग्राफिक फिल्म यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई रेटिना जैसे हमारा है, यहाँ पे पड़ी हुई है फोटोग्राफिक फिल्म। और अगर नजदीक की चीज को फोकस करना है तो वो तो यहाँ फोकस होती है, ये तो ब्लर्ड इमेज बनेगा यहाँ पे। तो इसको अगर हम दूर कर दें, इतने फासले तक यहां ले आए, तो कैमरे में उसको लेंस को दूर कर देते थे। या ये करते हैं कि मोर पावरफुल लेंस लगा लो। हमारी आंख में अल्लाह ने ये निजाम दिया है, हमारी आंख में एकोमोडेशन का निजाम ये है कि जब दूर की लाइट रेज पैरेलल को देख रहे हैं, नजदीक की देखने के लिए जब वो इस तरह फोकस होने लगती हैं, अल्लाह ऐसा लेंस लगा देता है। क्या मतलब है? हमारी लेंस सिस्टम को मोर पावरफुल बना देता है। एकोमोडेशन का निजाम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। सो ये फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ और फोकसिंग बाय डाइवर्जिंग लाइट रेज कैसे फोकस होती हैं और पैरेलल लाइट रेज कैसे फोकस होती हैं। रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ द लेंस इसी बेस पर है कि दिस इज डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज बाय दैट लेंस डिपेंड्स अपॉन, दो बातें हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फर्क होना चाहिए दोनों का, और डिग्री ऑफ एंगुलेशन, ये हम शुरू में हम देख के आ गए, इन दो पे डिपेंड करता है। सो इट इज मेजर्ड इन डायोप्टर्स। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ एनी लेंस जो दो चीजों पे डिपेंड करती है, कर्वेचर ऑफ द लेंस पे और स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस पे, एयर की निस्बत इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना फर्क है, डिफरेंस कितना है। सो दी इट इज जो भी बनेगी, दोनों फैक्टर्स को मिलाकर जो रिफ्रैक्टिव पावर बनेगी, उसको मेजर करने के लिए यूनिट जो है दैट इज नोन एज डायोप्टर। व्हाट इज डायोप्टर? रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द किसी लेंस की 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। कैसे मेजर करेंगे हम? 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स, मीटर्स में फोकल लेंथ मेजर करके उसको जितने मीटर होगा उतने 1 डिवाइड बाय उतने मीटर, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव पावर। एग्जांपल आप देख लें, रिफ्रैक्टिव पावर ये लेंथ है, इसकी देखें focal length, parallel light ray, they are focused here and the distance between the center of the lens and this is 1 meter. So refractive power of this lens will be 1 divided by 1 meter. That is, it will be, ये कैसे 1 meter पे है इसका focal point, तो 1 divided by 1 will be 1 diopter. इसकी refractive power will be 1 diopter. और दूसरा लेंस देख लें, इसका हमने कर्वेचर बढ़ा दिया है, शायद शीशा वैसा ही हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद वैसा ही हो, लेकिन कर्वेचर बढ़ाने से उसकी रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ गई है, रिफ्रैक्शन बढ़ गई है। इट इज रिफ्रैक्टिंग, मोर रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, इट इज बेंडिंग द लाइट टू फोकल पॉइंट इज जस्ट 0.5 मीटर्स, आधा रह गया। तो 1 डिवाइडेड बाई आधा, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव पावर। 1 डिवाइडेड बाई दिस, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 0.5 विल बी इक्वल टू 2 डायोप्टर्स। 1 divided by आधा, 1 divided by 0.5 is 2 diopter. इसकी रिफ्रैक्टिव पावर will be 2 diopter. एक और लेंस ले लें which is more curved, ज्यादा ग्लोबुलर है, ज्यादा कर्वेचर बढ़ा दिया है, एंगुलेशन बढ़ा दिया है, रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगी, रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगी, इसका फोकल पॉइंट बहुत करीब आ जाएगा। इट इज ओनली 0.1 मीटर, 1 मीटर, मीटर में मेजर करनी है हमने रिफ्रैक्टिव पावर, मीटर में, ये जस्ट 0.1 मीटर। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.1 विल बी इक्वल टू 10 डायोप्टर, इसकी रिफ्रैक्टिव पावर विल बी 10 डायोप्टर। सो दैट्स हाउ वी मेजर द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कनकेव लेंस, उसकी कैसे मेजर करें? कनकेव लेंस का तो फोकल पॉइंट ही कोई नहीं होता, हम उसको कैसे मेजर करें? उसका तो फोकल पॉइंट है ही नहीं, तो फोकल लेंथ भी कोई नहीं होगी, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? सो नो फोकल पॉइंट फॉर द फोकल लेंथ, सवाल ही नहीं है, वो तो लाइट रेज आर डाइवर्ज, फोकल पॉइंट तो है ही कोई नहीं, फोकल लेंथ कहां से आएगी? तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर कैसे मेजर करें? रिफ्रैक्टिव पावर इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग विद द कन्वेक्स लेंस। मिसाल के तौर पर कन्वेक्स लेंस इसको फोकस कर रहा है
पैरेलल लाइट रेज को एक जगह पे फोकस कर रहा है, इसके सामने एक कनकेव लेंस रख देते हैं, वो डाइवर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। अगर दोनों बराबर बराबर काम करते हैं तो लाइट रेज सीधी गुजर जाएंगी। ये कन्वर्ज कर रहा था, दूसरा लेंस उसको डाइवर्ज कर रहा है, कनकेव लेंस रख दिया है। अगर दोनों की रिफ्रैक्टिव पावर एक जैसी हो तो इसका क्या मतलब होगा, जितनी ये बेंड करेगा उतनी ये खोल देगा, रिजल्ट क्या होगा, पैरेलल लाइट रेज सीधी गुजर जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा, जितनी इसकी डाइवर्जिंग पावर है उतनी इसकी कन्वर्जिंग पावर होगी, तो दोनों की पावर इक्वल हो जाएगी। ये 1 डायोप्टर का है तो ये भी 1 डायोप्टर का होगा, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस होगा, इसलिए इसके साथ हम +1 बोलते हैं, इसको -1 बोलते हैं। बस ये फर्क है। सो रिफ्रैक्टिव पावर इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग विद द convex lenses. Convex lenses converge the light rays and concave lenses diverge the light rays. If दोनों का पावर इक्वल हो light rays, अगर if these two exactly neutralize each other, वो उसकी कन्वर्जेंस इसकी डाइवर्जेंस से न्यूट्रलाइज हो जाए, सो इफ द एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर, दे हैव इक्वल बट अपोजिट रिफ्रैक्टिव पावर। एक माइनस में है कनकेव लेंस, और जो कन्वर्जिंग पावर है, जो कन्वेक्स लेंस है, उसको प्लस की साइन के साथ बोल देते हैं और उसको नेगेटिव के साइन। सो कनकेव लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर कन्वेक्स लेंस के साथ मैच करके देखते हैं। ये 1 डायोप्टर का है, कनकेव लेंस भी 1 डायोप्टर का अगर होगा तो लाइट रेज सीधी गुजर जाएंगी। So refractive power. So concave lenses refractive power is expressed with minus sign, -1, -2 and -10 etc. Now image कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। पहले जरा सा मैंने आपको हवाला दे दिया था, व्हाट इज इमेज। ये मेरे सामने पूरा इमेज कैसे है, मिलियंस ट्रिलियंस अनगिनत पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट है, दे विल बी फोकस डिफरेंटली ऑन माई रेटिना। तो ये सारे मोजाइक ऑफ लाइट सोर्सेज हैं, मोजाइक ऑफ फोकाई आपस में मिलकर वो इमेज बना लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ऑल द लाइट रेज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट in all the planes are focused at common focal point in line with the light rays passing exactly in the center of the lens। यही प्रिंसिपल है कन्वेक्स लेंसेज का, कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जितनी भी लाइट रेज जितने प्लेन्स में आ रहे हैं वो एक जगह पे फोकस होंगी इन पैरेलल विद दी जो सेंट्रल बीम ऑफ लाइट। ऊपर वाला पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो लेंस के सेंटर से गुजर कर वो कहीं नीचे की तरफ सीधी लाइन जो जानी है, तो वो ऊपर वाली लाइन रेज सीधी जाए तो नीचे जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइट रेज अगर इससे गुजर रही है तो वो सीधी हॉरिजॉन्टली जा रही है, लाइट रेज ऊपर से आ रही है तो सेंटर से गुजर कर नीचे जा रही है, तो ऊपर वाला पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो है दैट विल फॉर्म अ फोकस समवेयर डाउनवर्ड अपोजिट साइड पे, इसलिए इमेज अपोजिट बनता है। सो एवरी ऑब्जेक्ट इज अ मोज़ाइक ऑफ मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, अभी मैंने बोला है, एंड ऑल द पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट कलर, ये सारी बातें उसमें शामिल करके ऑल दीज पॉइंट सोर्सेज of light are focused separately in line with the center beam of the light। ऊपर वाला पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नीचे फोकस होगा, दरमियान वाला दरमियान में फोकस होगा, नीचे वाला कहीं ऊपर फोकस होगा, किसी और जगह पे किसी और जगह डिस्प्ले जहां पे होगा अकॉर्डिंगली फोकस हो जाएंगे। पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट विल बी फॉर्मिंग पॉइंट सोर्सेज ऑफ मोज़ाइक ऑफ द फोकाई इन द अपोजिट डायरेक्शन। इमेज ये ऐसे है तो ऐसे इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा। सो दैट्स व्हाई ये डायग्राम में देख ले, फॉर्मेशन ऑफ इमेज दैट इज ये पॉइंट 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ द लाइट है, दो ही गए 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ये यहां बनाएगा पॉइंट और नीचे वाला वहां बनाएगा। अगर सेंटर में भी कोई और है तो वो सेंटर में बनाएगा, इधर कोई और है तो ऊपर कहीं बनाएगा, तो नीचे वाला पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऊपर कहीं जाके फोकस हो रहा है, ऊपर पॉइंट सोर्स क्योंकि सेंट्रल बीम ऑफ लाइट पर फोकस होते हैं तो इमेज उल्टा बनता है। तो ऐसे, so 2 point sources of light focus at 2 separate points on opposite sides of the lens। ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ द लाइट हैं, ये एक इमेज है,
एक इमेज है, मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। ये कैट का इमेज इस तरह उल्टा बनेगा, इस पाँव का इमेज उस तरह उल्टा बनेगा, लाइक दैट। सो ऑल द इमेजेस ऐसे इमेज बनते हैं। So all the point sources of the light, वो भी एक मोज़ेक, और उल्टी साइड पे वो फोकस होंगे रेटिना में। हमारा ब्रेन इसको सीधा दिखता है, इमेज तो हमारे रेटिना पे ऐसा उल्टा बनता है, लेकिन हमारा अवर ब्रेन इज ट्रेन टू सी दिस इमेज, उसको सीधा कर लेता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस, ये फोकस तो कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस ही करता है। ये लेंस सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब इस बेसिक नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अब ये हम बेसिक ऑप्टिक्स पढ़ लिए हमने, बेसिक प्रिंसिपल, लेंस कैसे कन्वर्ज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंसेज क्या होते हैं और इमेज कैसे बनता है, इसको हम फिर देखेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन, कि हम दूर की लाइट रेज को भी हमारी आईज फोकस कर लेती हैं, पैरेलल लाइट रेज को भी, और जब नजदीक की चीज को देखते हैं विच आर डाइवर्जिंग लाइट रेज, उनको भी फोकस कर लेती हैं। तो वो निजाम क्या है, दैट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन को एंड मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ शामिल हैं। आप होप यू आर फॉलोइंग मी, आपको समझ आ रही है। और हमेशा मैं कहता हूँ आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं आते, वेरी कम, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही है, क्वेश्चन है ही नहीं। अगर स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो डू आस्क, आप जरूर पूछें, कमेंट्स में मुझसे पूछ लें। आई विल बी ग्लैड टू एक्सप्लेन ऑल दोस। अगर वैलिड क्वेश्चन है तो उनको इंशाल्लाह आई विल एड्रेस। और आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।